Hello everyone, I welcome you all in my physics lecture. Today we are going to start motion in a straight line, right? So we are in the continuation of this chapter. This is the third part of this chapter, that is motion in a straight line, right? So now let's start our lecture. Yes, so as you know, we have left at the second equation of motion, right? So first and second equation of motion we have completed in first two lectures, right? So today we will start the third equation of motion, that is the relation between the velocity and displacement, right? So what we have to prove, that is v square minus u square is equal to 2as, where v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration, and s is the displacement, right? So how do we derive it? Let's see. From first equation of motion, as you know, it is the relation between the velocity and the time, right? So what is the equation of first equation of motion? V is equal to u plus at, right? But I will see here, you will see minus v, अगर आप इसको इधर लेके जाते हैं राइट हैंड साइड पे, इट विल बिकम प्लस वी, तो वही इक्वेशन बन जाएगी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट? लेट मी राइट इट, v इज इक्वल टू u plus at, right? So here you will see that v is the final velocity, right? तो मैंने यहाँ पे v को v प्राइम ले लिया, दैट मीन्स मेरी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे v प्राइम होगी. सिमिलरली अगर मैं इस u को इधर ले आऊँ तो वो क्या बन जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी. हमारी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे u है, तो मैंने यहाँ पे v माना है इनिशियल वेलोसिटी. a इज एज इट इज, राइट? सो ये इक्वेशन हमने ड्राइव की थी एट टाइम t इक्वल टू 0. अगर टाइम इनिशियल टाइम 0 नहीं है, कोई इनिशियल टाइम हम ले रहे हैं t, राइट, एंड फाइनल टाइम हम t प्राइम ले रहे हैं, सो देन वी पुट द वैल्यू t प्राइम माइनस t, फाइनल माइनस इनिशियल. यहाँ पे फाइनल t है और इनिशियल 0, इसलिए सेकेंड टर्म स्किप हो गई है, राइट? सो इन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v प्राइम माइनस v इज इक्वल टू a t प्राइम माइनस t, वेयर v प्राइम इज द फाइनल वेलोसिटी, v is the initial velocity, a is the acceleration, t is the final time, and t prime is the final time, and t is the initial time, right? So I will mark this equation as first equation. Now let's come to second equation of motion, that is x prime minus x, that is x is equal to ut plus half at square. Similarly s को हम क्या लिख सकते हैं? x प्राइम माइनस एक्स, क्योंकि s होती है नेट डिस्प्लेसमेंट, तो नेट डिस्प्लेसमेंट को हम लिख सकते हैं फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, राइट, इज इक्वल टू यू टी. यू मैंने यहाँ पे, हमने इनिशियल वेलोसिटी यू नहीं v मानी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे भी v लिखा है, तो t प्राइम माइनस टी यू टी हो गया प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी प्राइम माइनस टी का होल स्क्वायर, राइट? सो नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ t प्राइम माइनस टी एंड पुट डाउन द वैल्यू t प्राइम माइनस टी इन सेकेंड इक्वेशन. लेट्स डू दैट थिंग. मैंने फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड आउट कर लिया t प्राइम माइनस टी की वैल्यू एंड पुट इन द सेकेंड इक्वेशन, दिस वन इक्वेशन. आई मार्क दिस इक्वेशन एंड सेकेंड. तो आप करोगे क्या? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से वैल्यू निकालोगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट कर दोगे, राइट? सो x प्राइम माइनस x इज इक्वल टू, when I will put this value on solving, you will left with only three terms that will not cancel each other, right? So these two terms cancel each other, so you will left with three terms, 1, 2 and 3. This will solve in combination, right? v square by 2a minus v square by a, you will solve this here, right? And this term is right here, right? So you will see now you will left with two terms only, that is v prime square by 2a minus v square by 2a. तो 2a नीचे से डिनोमिनेटर में कॉमन, एंड आई विल take this on this side by cross multiplying, right? So 2a x prime minus x is equal to v prime square minus v square. Now you will see x prime minus x को हम क्या पुट कर सकते हैं? x, that is net displacement, so it will become 2as, that is equal to v square, that is final velocity, minus u square, that is initial velocity. आप चाहे इसको u पुट कर लो, चाहे इसको normal v, that is up to you, but you have to mention that which one is the final velocity and which one is the initial, right? So this is hence proof 2as is equal to v square minus u square. This is our third equation of motion, right? Now let's move to our next equation of motion, that is not much important, but you will use this in numerical point of view. Displacement in nth second of motion. You have to find the displacement of a body at particular second, nth second. Then how will you find? You know displacement formula
कहाँ से मिलेगा हमें? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपको पता है nth सेकेंड, दैट मीन्स टाइम की बात हो रही है और डिस्प्लेसमेंट की। तो वो कौन सी इक्वेशन है जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों के लिए रिलेशन में आती है? दैट इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट? दैट इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट? सो यू विल जस्ट सी, for finding out the displacement of an object in nth second of motion, that is s nth is equal to sn minus 1. This n here is time representation, n is time here and n minus 1 also represent the time, right? So t final hoga n second and n minus 1 is initial time, so t n minus 1. So now you will see, I will put down the value of displacement sn minus 1. As you know, the second equation of motion s is equal to ut plus half at square, right? So I will represent at this equation at particular instant of time that we consider n and n minus 1. So at instant t equal to n, then you will put s t की जगह n प्लस हाफ a t की जगह n, राइट? सो sn is equal to un plus half a n square. Similarly for the other instant, that is n minus 1, u n की t की जगह n minus 1 plus half a t की जगह n minus 1 का whole square, right? So just put down the value of sn and sn minus 1 in this equation first. So snth is equal to sn minus 1. Put down the value of sn minus, put down the value of sn minus 1. So on putting the value of sn minus 1, un as it is plus half a n square as it is minus, multiply it, un, yes, minus u, yes, plus half, open that the square bracket, n minus 1 whole square, that means a minus b whole square. You have to open that formula, a minus b whole square, right? So a square plus b square minus 2ab, 2an b1, that means 2n हो जाएगा, right? So open that bracket also by cross multiplying. When you solve this, you will left with three terms, u minus half a plus an. So collaborate the things, u plus half a, 2n minus 1, you will reach to your result, right? So it is the expression for the displacement in nth second of the motion, right? Now next thing is to study the position time graph. As you know, we are in the continuation of uniform accelerated motion. That means here body velocity is not constant, change in velocity is constant, right? So uniform means क्या कांस्टेंट होगा? यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट होता है कोई ना कुछ, बट हियर इट्स नॉट अ डिस्टेंस कांस्टेंट, नॉट अ वेलोसिटी कांस्टेंट, हियर द चेंज इन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, राइट? सो एज यू सी द ग्राफ ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इज लाइक दिस. सो एज यू नो, एट टाइम t equal to 0, let's assume the body is at distance x, right? So that means body is at some distance, not at x equal to 0. तो किसी इनिशियल टाइम पे बॉडी एक डिस्टेंस पे पड़ी है 10, तो आप 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे इस ग्राफ को, राइट? सो स्टार्ट्स फ्रॉम 10. नाउ हमें पता है टाइम इंटरवल पे, हर एक टाइम इंटरवल पे हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, राइट? But what is the equation that we use for finding out the distance at every instant of time, at every second of time, that is x और t के relation में? So that we use is second equation of motion, x equal to x naught plus ut plus half at square, right? ये वही हो गई s, क्योंकि इधर लेके जाएंगे x minus x naught को हम s लिख सकते हैं, right? So as I assume the first x naught को मैंने first 10 initially मान लिया, times t equal to 0 पे initial velocity 5 meter per second है and acceleration is 5 meter per second square, right? So as I told you that acceleration is constant. Why? क्योंकि change in velocity constant है, और acceleration का फॉर्मूला क्या होता है? change in velocity upon change in time. अगर change in velocity constant है uniform accelerated motion के लिए, then acceleration should also be constant, right? So you always take the one value of acceleration and continuously that we will use in next deriving at each second, right? So x naught is given, u is given, t we know, at which instant you have to find the displacement, a we know, t we know. So just find the value of t equal to 1 second, that is 17.5 meter per second, right? So by using the position time graph, you will find out the value at every instant of the time, 1 2 3, but you will see here the distance is not same always. Here the 17.5, and when t equal to 2, it will be another value, right? So it's not a constant value, distance will vary, velocity will also vary, but change in velocity will not vary, that is constant, right? Okay, so what are the things that you learn about from this graph? So similarly you will find that different values of a different time interval here not equally vary
because uniform accelerated motion, as I have told you, not cover equal distance in equal interval time, तो uniform motion में होता था, right? So next is x or t graph for an object having uniform accelerated motion is parabolic one, right? So आपको एक curve nature का है, so that is parabolic nature, curve nature. आपको straight line नहीं मिलेगी, right? क्योंकि ये equally vary नहीं कर रहे हैं, distance equal नहीं है, so that's why I will write here the graph is a parabolic nature, right? Okay. So let's now start to study the velocity time graph, right? As you know, I have told you already that why change in velocity in uniform acceleration, uniform accelerated motion, please, accelerated, not uniform motion, that is non-uniform motion but a uniform accelerated, right? So here velocity is changing, change in velocity should be constant, right? तो आप बोलोगे कि velocity constant तो सीधी line straight line ऐसे खींचते हैं हम, जैसे हमने second lecture में किया, but not like that. Here change in velocity is constant, not velocity is constant. So that means जितना अगर हम time interval लेंगे 1 से 2 सेकेंड का, अगर जितना उसमें चेंज होगा नेक्स्ट 1 मिनट में भी उतना ही चेंज होगा, राइट? लेट्स डिस्कस सम एग्जांपल, देन यू विल मोर क्लियर. As you know, first equation of motion is v is equal to u plus at. U is 10 meter per second and a is 5 meter per second square, right? So at t not equal to 0, that means at initial time, initial velocity is 10 meter per second. That what is the distance, what is the velocity at another time t, right? So if you want to find the time at t equal to 1 second, what is the velocity? इनिशियल वेलोसिटी हमने अज्यूम कर ली 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन भी 5 है और t1 पे 15. तो आप देखोगे कि u t0 पे 10 थी, t1 पे 15, अगर आप t2 पे निकालना चाहो 20 हो जाएगी, राइट? सो यू विल सी जैसे जैसे हम टाइम डिफरेंस 1 सेकेंड का गैप ले रहे हैं वैसे वैसे गैप 5 का चेंज आता जा रहा है, बट चेंज इज सेम ना, चेंज इन वेलोसिटी इज सेम, सो दैट विल मैटर इन द यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी इज सेम. सो दैट्स व्हाई इट्स अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, नॉट अ पैराबोलिक वन, राइट? सो अगर आप 10 पे देखोगे 0, 10 पे नेक्स्ट इज एग्जैक्टली द सेम, नेक्स्ट 5 सेकेंड एग्जैक्टली सेम, राइट? सो यू विल सी हियर देयर इज इक्वल वेरिएशन इन टाइम एंड इक्वल वेरिएशन इन वेलोसिटी, सो देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी. सो दैट इज द बेसिक रिजल्ट फ्रॉम दिस ग्राफ आई हैव टू डिटेल यू, राइट? नाउ इट्स इंपॉर्टेंट नोट दैट स्टूडेंट्स थिंक दैट कि अगर वेलोसिटी 0 हो रही है तो एक्सेलरेशन की वजह से हो रही है कि एक्सेलरेशन 0 है, बट वेलोसिटी की स्पीड के स्लो डाउन होने के एक्सेलरेशन के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है, राइट? सो एक्सेलरेशन डिक्रीज होगी, सो यू विल सी हियर वी गेट अ स्ट्रेट इन that speed slow down, acceleration become decrease. That is wrong thing to think, right? So the basic thing is whenever body speed slow down, that means अगर कार मूव कर रही है, अगर उसको कार को स्पीड स्लो डाउन करनी है और फाइनली 0 पे लाना है, तो सबसे पहले वेलोसिटी थोड़ी स्लो डाउन होगी, एग्जैक्टली एकदम से 0 नहीं होती, हम कार को धीरे धीरे रोकते हैं, राइट? सो व्हेन एवर बॉडी स्पीड स्लो डाउन द वेलोसिटी बिकम डिक्रीजेस एंड देन कम टू 0, रेस्ट आने से पहले स्लो डाउन होती है, राइट? सो देन अगेन 0 से फिर से पॉजिटिव वाली साइड इंक्रीज. सो एक्सेलरेशन प्ले नो रोल इन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग वेलोसिटी, राइट? रिमेंबर दिस एंड प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग from this example. You will see from first equation of motion v is equal to u plus at, right? So final स्पीड दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी इज 0, क्योंकि बॉडी को स्टॉप करना है, तो 0 हो गया, u प्लस 80, टाइम नेगेटिव हो गया. अगर मैं मान लूँ कि u मेरे पास 10 और a मेरे पास 5, तो टाइम हो गया -2 सेकेंड. तो आप देखोगे कि t इक्वल टू -2 सेकेंड पे बॉडी रुक जाएगी, वेलोसिटी 0 हो जाएगी. तो t लेस देन -2 सेकेंड पे क्या होगा, बॉडी स्लो डाउन होना शुरू होगी, क्योंकि t लेस देन -2 के पहले का टाइम है. तो t लेस देन -2 पे क्या होगा, स्पीड स्टार्ट स्लो डाउन, राइट? देन t इक्वल टू -2 पे क्या होगा, स्पीड स्लो डाउन जस्ट, राइट? 0, t -2 पे 0, t लेस देन -2 पे स्पीड स्लो डाउन, एंड देन आफ्टर t ग्रेटर देन -2 सेकेंड स्पीड अगेन इंक्रीजिंग. सो आप बोलोगे कि t -2 सेकेंड कैसे शो करें, तो आपको अपने ग्राफ को पीछे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ेगा थर्ड क्वाड्रेंट में. फॉर एग्जाम्पल आई विल शो हियर बाय ड्रॉइंग द ग्राफ हियर. फॉर एग्जाम्पल, yes, this is t axis, this is positive t, this is positive, right? And this one is negative. So this one is पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव. तो आपका फॉर एग्जाम्पल ग्राफ जा रहा है ऐसे, राइट? तो आपको इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ेगा लाइक दैट.
ताकि थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड एंड दिस वन इज थर्ड, तो t नेगेटिव हुआ। तो आप देखोगे यहाँ पे स्पीड वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव होनी शुरू। दैट मीन्स कि स्पीड यहाँ पे स्लो डाउन, एग्जैक्टली यहाँ आएगी तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। यहाँ पे आके यहाँ पे स्लो डाउन, फिर से अगेन वेलोसिटी इंक्रीज। तो ये कंसेप्ट रहता है रिटार्डेशन का कि बॉडी एग्जैक्टली स्टॉप कैसे करती है एकदम से, राइट। सो टाइम उस टाइम पे नेगेटिव, दैट मीन्स हमें नेगेटिव क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, राइट। Okay, so this is the concept that I have to dictate with you. Next is negative, that I will told you already कि आपको नेगेटिव टाइम एक्सिस में एक्सटेंड करना पड़ेगा, आप थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे, then you will see this thing. So next is एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हो, जो हमने पहले बनाया कि कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन ही मिलती है क्योंकि इक्वल वेरिएशन होता है, तो कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन, नॉट पैराबोलिक वन, ठीक है। और चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी नहीं। मैं बार बार एक ही चीज रिपीट करती हूँ क्योंकि दिस topic is important and students are much confused. When you will cover this chapter now, you will see that you will forget all the things, that which one, in which case it's constant, in which case it's increasing or parabolic one, right? So now this the thing, so now you will see here, ये आपने ग्राफ पहले ही देखा है, तो मैंने इसका स्मॉल पोर्शन ले लिया ए बी, ए प्राइम बी प्राइम। सो दिस वन इज अ कांस्टेंट पोर्शन, राइट। सो यू विल सी कि इस ग्राफ, हमें इस ग्राफ का एरिया क्या होगा, तो हमें सिर्फ इस छोटे पोर्शन के लिए एरिया देखना है, ए बी प्राइम के अंदर कितना एरिया आ रहा है। तो ये एरिया हमें क्या देगा, हम देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है। तो एट टी टाइम टी द वेलोसिटी इज v, एट टाइम टी प्राइम द वेलोसिटी इज v प्राइम, राइट। सो नाउ यू विल सी रिलेशन, ये क्या बन रहा है, इट्स अ ट्रेपीजियम, ए बी, ए प्राइम बी प्राइम इज ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम का एरिया निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें एरिया अंडर दिस ग्राफ निकालना है। तो हाउ विल यू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, दैट इज हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। कौन सी पैरेलल साइड्स हैं, ए प्राइम एंड बी बी प्राइम, ठीक है। तो आप सम कर दोगे दोनों पैरेलल इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। व्हाट विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज ए प्राइम बी प्राइम, राइट। सो ए प्राइम प्लस बी बी प्राइम इंटू ए प्राइम बी प्राइम, राइट। सो हाफ ए प्राइम की वेलोसिटी कितनी है, v, ए प्राइम वेलोसिटी उसके सामने कितनी है, v, एंड बी प्राइम की वेलोसिटी v प्राइम, ठीक है। तो क्योंकि हम y एक्सिस है ए प्राइम, तो y एक्सिस पे वेलोसिटी है, राइट। सो यू विल पुट v प्लस v प्राइम इंटू ए प्राइम बी प्राइम को क्या लिख सकते हैं, t प्राइम माइनस t, क्योंकि ये डिस्टेंस है, राइट, चेंज इन टाइम एक्सिस। सो t प्राइम माइनस t। जब आप देखोगे और फॉर्म फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू at, right, v minus u is equal to at, why v is equal to u plus at वाली first equation of motion. Find the value of t. So you will see here from first equation of motion you will find the value of t prime minus t. Just put down the value of t prime minus t in this equation, that will become v prime plus v, और t prime minus t की जगह आप ये पुट करोगे v prime minus v by a, क्योंकि ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आया। सो a प्लस b, a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो v स्क्वायर माइनस v प्राइम स्क्वायर, राइट। सो दिस विल बिकम दिस थिंग। सो दैट मीन्स एरिया हमारे पास ये आ गया। अब आपको यहाँ से देखने के लिए कुछ लग रहा होगा कि ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बनती है जो हमने स्टार्टिंग में आज डिराइव किया इस लेक्चर के, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, राइट। सो अगर मैं यहाँ से s की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितनी आ गई, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर divided by 2a is equal to s, right. So when you compare this equation and this equation you will see कि आपका एरिया s के इक्वल आ जाएगा। That means velocity time graph का एरिया हमें क्या देता है, displacement. So that we have to find from the graph that area under the velocity time graph give us the displacement, that is x minus x naught, right. So this you have to do. So we can say that area under velocity time graph for uniformly accelerated motion give us the displacement, right. So next thing is what is variable velocity. As you see in case, so as you know in the starting of non-uniform motion I have told you we divide this in two portion, uniformly accelerated motion and second one is non-uniform accelerated motion. तो uniformly accelerated motion में change in velocity constant होती है, but in case of non-uniform accelerated motion the change in velocity is not constant, that is variable. So that's why the concept of variable velocity here come. An object is said to be moving with variable velocity if it undergoes unequal displacements in equal intervals of time. That mean 1 से 2 सेकंड में देखें तो कुछ और चेंज होगा, वेलोसिटी का चेंज 5 मीटर फॉर एग्जाम्पल, 5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट
2 से 3 सेकंड में देखिए टाइम वेरिएशन सेम है 1 सेकंड की, बट अब चेंज 5 नहीं होगा, 5 मीटर पर सेकंड होगा, 6 में बी 4, डिक्रीज भी हो सकते हैं, इंक्रीज भी, राइट? सो देन यू कॉल दैट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटिंग मोशन मैम, राइट? सो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी इफ इट अंडरगोज एन अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. So that is the case of uniformly accelerated motion. So that's why I write here change in velocity is same in case of uniformly accelerated motion, and change in velocity is not same, that is variable one, in case of non-uniform accelerated motion, right? So now some important things regarding variable and non-variable uniform motion. So when object with variable velocity तो speed भी change होगी, direction भी change होगी, right? तो अब not sure कि हमेशा जो हम पढ़ रहे हैं कि motion in straight line, motion in one dimension, 2D भी हो सकता है, 3 dimension में भी body move कर सकती है, क्योंकि speed और दोनों change होंगे, direction भी, right? तो अगर direction change होगी, not कि हम वो straight line में जाएगी, direction कहीं भी हो सकती है. That's why just I will written here कि 1 dimension की जगह 1 dimension भी हो सकती है, not sure. तो but 2D और 3D की possibility भी है, right? So second one is velocity time graph may or may not be straight line. Obviously अगर variable velocity change same नहीं होगा तो it may not be straight line. ये कुछ भी हो सकता है, parabolic one भी हो सकता है, right? Next is position time graph भी हमें straight नहीं मिलेगा, position time graph भी चेंज हो सकता है. नेक्स्ट थिंग इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. सो व्हाई वी रीड द कंसेप्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. एज यू सी वी सी दैट द पैराबोलिक ग्राफ्स विल टेक ना इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन लाइक दिस, राइट? सो हर एक इंस्टेंट पे हम वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं, राइट? तो आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर मिलता है. अगर मैं इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करना चाहूँ तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी चेंज आएगा, राइट? बट इसके बीच वाले पॉइंट्स कैसे लूँ मैं, राइट? सिमिलरली हियर तो आप क्या करना पड़ता है कई बार, फॉर द टाइम बीइंग यू विल सी कि आपको इन इंटरवल्स को और छोटा करना पड़ता है. यहाँ से बिल्कुल पतली पतली लाइंस, पतले पतले इंटरवल्स की लाइंस आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी होगी, राइट? सो नाउ यू विल सी हियर कि हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब समझते हैं. पहले होता क्या, इंस्टेंट मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना. अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो आप बोलोगे इस इंटरवल को लो, फिर इसका लो, इसका लो, जितने भी इंटरवल्स हो उनका सब करो बाय जितने भी इंटरवल्स हमने लिए 5 या 6 डिवाइड बाय 6 कर दो, आपको एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी. बट दैट इज एवरेज. आप किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछें तो नहीं बता सकते. बट in case of instantaneous velocity we will find at particular point, बिल्कुल छोटे से छोटे इस पॉइंट के आसपास में बता सकते हो कितने किस टाइम के आसपास कितनी वेलोसिटी होगी, राइट? तो दैट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. आपको 0.1, 0.2, 0.001 सेकेंड का भी जब ड्यूरेशन देखना हो बिल्कुल पास वाले पॉइंट्स पे भी, देन यू टेक द कंसेप्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट? सो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ. तो आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पाथ के आपको वेलोसिटी बतानी है, दैट यू विल यूज द कंसेप्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. व्हेन यू विल रीड द फर्दर ना, यू विल अंडरस्टैंड द concept more, what is instantaneous and what is the difference between average one and the instantaneous one. तो आप क्या करते हो, बिल्कुल छोटे छोटे इंटरवल लेते हो. तो आप यहाँ पे देखोगे कि इतना टाइम गैप है, इतना टाइम गैप आ रहा है इस टाइम इंटरवल में. अगर आप ये लाइन को थोड़ी इसके पास ले, यहाँ पे आ जाएगा टाइम इंटरवल और छोटा और छोटा. जितना छोटा करते जाओगे टाइम इंटरवल बिल्कुल 0 हो जाएगा. तो जब भी टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल हो तब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके भी वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? सो व्हाई कंसेप्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? बिकॉज द ग्राफ इज नॉट स्ट्रेट लाइन, ग्राफ इज पैराबोलिक वन, सो दैट्स व्हाई स्लोप चेंजेस एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द ग्राफ, हेंस वेलोसिटी चेंज कॉन्टिन्यूसली. तो हर एक पॉइंट पे क्या होगी, स्लोप चेंज होगी. यहाँ पे देखोगे स्लोप कुछ और, यहाँ पे देखोगे स्लोप कुछ और, क्योंकि पैराबोलिक वन है. अगर स्ट्रेट लाइन होती तो हर जगह पे देख लो सेम होगी. फॉर एग्जाम्पल आई विल ड्रॉ हियर स्ट्रेट लाइन लाइक दिस. तो यहाँ पे किसी भी 2 पॉइंट्स पे ले लो, स्लोप आपको सेम मिलेगी. बट अगर आप ये 2 पॉइंट लेते हो पैराबोलिक वन में और नेक्स्ट इंटरवल में जाके कहीं और 2 पॉइंट्स लेते हो तो इन दोनों का आपको स्लोप डिफरेंट मिलेगी, क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है. तो प्लीज रिमेंबर स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप होती है वो कांस्टेंट होती है और पैराबोलिक की वन कांस्टेंट नहीं मिलती. तो आप कैसे फाइंड आउट करो कि हमेशा वेलोसिटी चेंज हो रही है नहीं? दैट्स वाई हम यूज दिस कंसेप्ट कांस्टेंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट? सो नाउ मैंने ग्राफ बनाया पैराबोलिक वन, दैट वी डिस्कस ऑलरेडी. सो अगर
अगर पैराबोलिक ग्राफ हम बनाते हैं और अगर हम टाइम इंटरवल बहुत बड़ा लेते हैं, देखो ए और बी प्राइम टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा है, राइट? सो हियर ए एंड हियर बी, टाइम टी, हियर टी, टाइम टी प्लस डेल्टा टी। तो वेरिएशन क्या है? डेल्टा टी की बहुत बहुत बड़ी वेरिएशन है। तो हम अगर मैं बोलूँ कि आपको इस पॉइंट के आसपास निकालो, कैसे निकालोगे? आपने तो इंटरवल ही बहुत बड़ा बना लिया, राइट? तो इन दैट केस यू विल टेक द एवरेज वेलोसिटी, नॉट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि टाइम इंटरवल बहुत बड़ा है इस केस में, राइट? तो आपने बहुत गैप ले लिया। और देखो ये स्ट्रेट लाइन को मैच करने का ये मैंने क्यों किया, मैं बताना चाह रही हूँ कि अगर यहाँ पे स्लोप वेरिएबल है, अगर ये स्ट्रेट लाइन होती तो स्लोप कांस्टेंट होती, राइट? और ये टाइम इंटरवल भी बहुत बड़ा है। नाउ यू विल सी इन केस ऑफ, तो हम एवरेज वेलोसिटी को पहले देखते ही लिख क्या सकते हैं, फिर हम इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं कि ग्राफ कैसे बनता है। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए फाइनल माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल, तो बचा क्या? डी एक्स बाई डी। तो ये डेल्टा, डी नहीं बोलते इसको, डेल्टा बोलते हैं, राइट? सॉरी। सो डेल्टा विल रिप्रेजेंट अ स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय स्मॉल चेंज इन टाइम, राइट? बट यहाँ पे स्मॉल बोल तो रहे हैं, बट एवरेज के केस में हम स्मॉल इतना लेते नहीं है, राइट? तो डेल्टा मतलब जस्ट चेंज, नॉट स्मॉल। सो डेल्टा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वोंट चेंज इन टाइम, तो डेल्टा हम तब यूज करते हैं, राइट? नाउ द इंस्टेंटेनियस मीन्स वी हैव टू फाइंड दैट वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, सो इन दैट केस वी अप्रोच दैट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम इंटरवल बहुत स्मॉल लेते हैं, राइट? तो टाइम अप्रोचेस टू जीरो हो जाता है। एज यू शो द, आई शो द ग्राफ, यस हियर यू विल सी, आपको दिख रहा होगा मैंने कितने पहले हमने पूरा एक यहाँ से लेके यहाँ तक एक पूरा इंटरवल लिया था। नाउ उस इंटरवल में देखो मैंने कितने इंटरवल डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 सॉरी, सो देयर आर 4 इंटरवल्स इन वन इंटरवल ऑफ एवरेज वेलोसिटी एज वी डिस्कस। सो जब हम इंटरवल बहुत स्मॉल करते हैं, इससे भी छोटे कर सकते हो, तो क्या होगा? डेल्टा टी बिल्कुल जीरो ही हो जाएगा, चेंज इन टाइम मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हमें इस पॉइंट के आसपास नेबरहुड में सारे पॉइंट्स पे अगर वेलोसिटी निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं, राइट? सो दैट्स व्हाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के केस में हम लिमिट लेते हैं कि लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। डेल्टा टी अप्रोचेस टू, जब जीरो कर दोगे एवरेज वेलोसिटी में, ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला था, तब आपको क्या मिलती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट? सो वी कॉल दिस डेल्टा एज अ डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। किसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट? डिस्प्लेसमेंट का और टाइम का। सो v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू जीरो, दैट इज इक्वल टू डेल्टा x डिवाइड बाय डेल्टा t, राइट? So now you will see we will denote this the instantaneous velocity by dx by dt, acceleration instantaneous velocity, right? तो डेल्टा क्या बन गया? अब dx। तो या तो आप ऐसे लिखो, इसको भी इंस्टेंटेनियस बोलेंगे जब आप लिमिट अप्लाई कर दोगे, या फिर लिमिट अप्लाई करने के बाद डेल्टा डी में चेंज हो जाता है, तो इसको डेरिवेटिव का साइन बोलते हैं, राइट? सो नाउ v इज इक्वल टू dx by dt। तो देयर आर टू फॉर्म्स टू राइट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सिमिलरली हाउ वी रिप्रेजेंट द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, दैट इज a इज इक्वल टू, आपको लिमिट यहाँ भी लगानी पड़ेगी, आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम। सो डेल्टा टी दोबारा अप्लाई करोगे, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, सो अगर लिमिट लगी तो डेल्टा चेंज टू डी, ये दोनों ही रिप्रेजेंट चेंज को करते हैं, बट ये रिप्रेजेंट करता है वेरी स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है, राइट? सो दिस वन इज चेंज इन वेलोसिटी, दिस वन इज वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। अगर मेजर करना हो तो हम लिमिट अप्लाई करते हैं कि हमारी टाइम बिल्कुल टाइम अप्रोचेस टू जीरो हो गया, चेंज इन टाइम अप्रोचेस टू जीरो, सो dv by dt इक्वल टू एक्सेलरेशन, दैट इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, राइट? सो नेक्स्ट थिंग इज हम लिख कर सकते हैं d, v को क्या लिख सकते हैं? अगेन dx by dt, क्योंकि पहले हमने v की जगह dx by dt लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, राइट? तो dx by dt, अब ये डबल डेरिवेटिव है, d यहाँ पे भी d यहाँ पे, तो ये बन गया d2। सो एक्सेलरेशन को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर। तो आपको अगर x दिया तो आप dv by dt v भी निकाल सकते हैं dx by dt करके, अगर आपको x दिया तो आप एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं डबल डेरिवेटिव करके, राइट? सो वी विल डू द प्रॉब्लम्स इन नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, राइट? एंड इन दिस चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, द टू टॉपिक्स ओनली लेफ्ट, दैट इज हम जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं उनको हम 2 मेथड से और डिराइव करेंगे। वन इज कैलकुलस मेथड एंड सेकेंड वन इज ग्राफिकल मेथड। सो ग्राफिकल मेथड से इन तीनों इक्वेशन को डिराइव करेंगे। फर्स्ट वन इज v इज इक्वल टू u प्लस at, सेकेंड वन इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड द थर्ड वन इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, राइट? सो हम तीनों इक्वेशन को ग्राफिकल से और कैलकुलस मेथड से सॉल्व करेंगे। सो लास्ट जो लेक्चर होगा इसका बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि तीनों में से एक ना एक ग्राफिकल मेथड से सोल्व करनी आपको हमेशा आती है, राइट? एग्जाम में। सो
दैट्स वाई आई एम टोल्ड यू ऑलरेडी कि थर्ड लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको प्लीज देखना है। फोर्थ वन, सॉरी इट्स द फोर्थ, दैट इज द फोर्थ लेक्चर होगा जो आपको नेक्स्ट में मिलेगा, राइट। सो इट्स द थर्ड लेक्चर टुडे। सो graphical method is very very important. Calculus is not as much as important as graphical one, तो graphical बहुत important होगा, right? So let's come to our back to this topic. इसमें एक प्रॉब्लम है जो मैं आपको इसमें दे रही हूँ, अगर पहले आपको खुद ट्राई करनी है, अगर आपको प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी, राइट, इन कमेंट सेक्शन और एनीवेयर। As I told you already, I have made an official Instagram page. You can follow me there. I will provide you the link in description of this video. You will click on that link and follow me there on Instagram page. You will find out the PDF or videos, right? Or one more thing, please subscribe my channel, like with your friends, share as much as you can, and please अगर जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल वो प्लीज कर लीजिए। एंड आफ्टर सब्सक्राइबिंग माय चैनल प्लीज हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन फॉर अपकमिंग लेक्चर, सो दैट यू डोंट मिस एनी वीडियो लेक्चर, राइट। सो दिस क्वेश्चन you have to do yourself. Okay, stay home, stay safe, like, share, comment, and please don't forget to subscribe. Physics Tutorials by Jinkle Grover, right? Thank you so much. Thank you for watching the video. Goodbye.